اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر اور شکر ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ روزہ اور سوزش کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جس میں ہماری بات جو ہے غذا اور غذائیت اور بیماری کی صورت میں ہم نے جانا کہ بہت سی ایسی غذائیں ہیں جن کی غذائیت کی وجہ سے ہماری بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم خود جو ہے بیماری کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، جس میں بہت سے کاسمیٹکس کی بات ہم کل کر رہے تھے کہ ہم چہرے پہ کاسمیٹکس لگا کے چہرے کو تباہ کر لیتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی چہرہ ہوتا ہے اس کے اوپر ملمہ کاری کر کے ہم کوشش کرتے کہ ہم زیادہ خوبصورت نظر آئیں، لیکن وضو سے جو بھی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ کاسمیٹک سے عارضی خوبصورتی جو ہے ہمیں نقصان دیتی ہے۔ بلکہ یہ کیمیکل جتنے بھی کاسمیٹک کے اندر ہوتے ہیں وہ ہماری جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ ان کیمیکل میں اکثر جو ہے یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جس میں جو ہے یہ کاپر اور اسی طریقہ سے زنک اور اسی طریقہ سے دیگر جو ہے اسینشل نیوٹرینٹس جو ہے یہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہ تباہ کرتے ہیں اسینشل نیوٹرینٹس کو، جس کی وجہ سے ان کی ایکسیس کی وجہ سے انفلمیشن ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی نیورو ٹرانسیکشن ہوتے ہیں تو اس اسٹیج کے اندر جو ہے وہ انفلمیشن جو ہے بہت تیزی سے ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ہے وہ بلو بیری کیا کرتی ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی الرجی کو بہتر کرتی ہے اور ہمارے جسم کو طاقت اور توانائی جو ہے مہیا کرتی ہے۔ کیا یہ ہمیں جو ہے یہ انفارمیشن کے اندر اضافہ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہائپو اس کے اندر جو ہے بہت ہوتے ہیں، جس کو ہم جو ہے فوڈ پوائزن کہتے ہیں۔ ہمارے فوڈ کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ فوڈ کے اندر آٹو امیون سسٹم کو ختم کر کے ہمارے اندر جو ہے وہ آٹو امیونٹی کو جو ہے وہ کر دیتی ہے، یعنی کہ آٹو امیونٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کو پکانے کے لیے بہت سی گیسیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے فائٹو میڈیسن میں تو اس وقت ہم نے یہ جو ہے یہ فاسفین گیس سی ٹرپل بانڈ جو ہے سی، اس کو ہم نے اس وقت پڑھا تھا۔ تو یہ والا جو ہے یہ انتہائی زیادہ جو ہے، اور ایتھین گیس جو ہے یہ پھلوں کو پکانے کے لیے جو ہے کولڈ اسٹور میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی طریقہ سے بہت سے ایسے کیمیکل ہیں، کاسمیٹکس ہیں، جن شیمپو ہے جو کیمیکل طور صابن ہے جو کیمیکل طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے زہریلے کیمیکل ہیں، صابن کے اندر بہت سے زہریلے جیسے کاسٹک سوڈا ہے، اور اس طریقہ سے مختلف قسم کے شیمپو جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ایسے کیمیکل جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں اور بیسیکلی طور پر وہ انفلمیشن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقہ سے بہت سے جو ہے وہ پروٹین ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ جب جاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے ان کو سمجھتا ہے کہ ہم یہ جو ہے انوائٹر کوئی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے منرلز بہت سے ہوتے ہیں، وٹامن ہوتے ہیں، جس کو جو ہے ہمارے جسم کے اندر جب یہ چیزیں جاتی ہیں
تو انورٹر سمجھ کے ہمارے جسم اس کے خلاف جو قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. جب قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بہت سی چیزیں جو ہے یہ جتنے بھی حشرات ہیں جب وہ بائٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو مکھی مچھر اور اس طریقے سے دیگر حشرات ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے ماحول میں موجود ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ہمیں جو ہے جب نقصان پہنچاتے ہیں ہماری جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے جب ہمیں بھیڑ وغیرہ کاٹ جاتی ہے تو یہ بھی انفلامیشن کا باعث بنتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے یہ شہد کی مکھی ہے جب یہ کاٹ جائے تو اس میں جو ہے خاص طور پہ بہت بڑی جو ہے انفلامیشن ہونے کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جسم کے اندر جو ہے وہ انفلمیشن میں اضافہ کرتے ہیں. وٹامن ایچ ہے, وٹامن ایچ جو ہے وہ اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمیں کون سی ایسی جو ہے مہارتیں یعنی کہ اسٹریٹجی کا استعمال کرنا چاہیے جس سے جو ہے ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکیں, یعنی کہ جو کاسمیٹک ہم نے بات کی, جتنے بھی نیوٹرینٹس بات کی, کاپر زہر ہے, تانبا جو ہے وہ بھی زہر ہے, اور زنک ہمارے لیے مفید ہے, لیکن اسی طریقے سے جو اوپر لگانا ہے جلد کے اوپر جو ہے ابھی میں نے کاسمیٹک کی بات کی تو اس میں جو ہے زنک نقصان دہ ہوتے ہیں, زنک کا پاؤڈر نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے ایسی جو ہے جب ہم گیس سے جو ہے نقصان دہ ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور کون سا ایسا جو ہے وہ کہ ہم جو اپنی جلد کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں, اور ہم کون سی ایسی غذائیں ہیں جلد سے جو ہے ایسی اسٹریٹجیز کو استعمال کیا کریں کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے بچ سکیں. سب سے پہلی بات دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, سبحان اللہ, سب سے بہتر نعمت جو ہے مفت کی جو ہے فری میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جس میں کوئی پیسہ ہمارا نہیں لگتا. اگر وہ ہمیں اسکول سے مل جائے, اور اسکول ان کے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو کہ صبر کرتے ہیں, ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ اسکول پیدا کر دیتا ہے. دل اور دماغ جو ہے آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بیسیکلی طور پر. اور فری یہ اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے بہت بڑی, کیا ہے جی؟ نیند, سلیپ. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جی. فری ہم جو ہے کیا کرتے جی, بالکل فری موجے کرتے جی, اس میں کوئی پیسہ نہیں ہمارا لگتا, ہم نیند لے لیتے ہیں جی. اور ہر جتنے بھی ٹیشو ہمارے جسم کے ہوتے ہیں, اعصاب ہوتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں سوائے دل کے پٹھوں کے جو ہے, دل کے مسلز کے, باقی تمام مسل تھکتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, نیند کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہمیں فری نیند جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کے ساتھ, جو بھی صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, تو وہ نوم صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات جس کو نیند نہیں آتی, ولا تاخذو, کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند نہیں آتی, ولا نوم, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کو نیند کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, یعنی کہ سلیپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. غصہ اور سٹریس کے اندر جو ہے جب مختلف قسم کے ہارمون تیزی سے خارج ہوتے ہیں تو نیند کی حالت میں جو ہے مکمل سکون, آرام اور بڑا جو ہے زبردست قسم کا جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے سکون مل جاتا ہے. اگر ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ بی ایس آر یعنی کہ بلڈ شوگر رینڈم اگر ہم ٹیسٹ کریں یہ زیادہ ہو چکی ہو, تو جب ہم ڈیپ سلیپ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی طور پر ڈیپ سلیپ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہارمون جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اثر کر کے جو ہے انسولین کی پیدائش کو تیز کر لیتے ہیں, اور ہم جو ہے کیا ہوتے ہیں جی مکمل طور پہ جو ہے اسکول میں چل جاتا ہے. ہمارا شوگر لیول آٹومیٹک طور پہ جو ہے یہ فاسٹنگ کے اندر خاص طور پہ یہ نیچے چلا جاتا ہے. خاص طور پہ 10 سے لے کے جب ہم جو ہے صبح 2 بجے تک جو ہے ڈیپ سلیپ لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کیا ہوتا ہے جی بڑی اچھے طریقے سے جو ہے سکون مل جاتا ہے. تو ہم جو ہے وہ جب دوبارہ جو ہے 2 بجے فریش ہو کے اٹھ کے روزہ رکھتے ہیں اور 4-5 بجے تک جو ہے ہم ساری کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکتیں ڈال کے ہمارا جو ہے یہ شوگر سسٹم جو ہے اس کو درست کر دیتے ہیں. اگلی بات ہم کرتے ہیں جی, سبحان اللہ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر جو ہے
इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जो भी हमने बातें की, इतने केमिकल, कापर वगैरह, इनके रेजिस्टेंस के लिए जो है अल्लाह ताला ने एक और फ्री चीज बनाई हुई है। अगर उसके पैसे लग जाए ना, जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, आप सोच भी नहीं सकते। सनशाइन, सूरज की रोशनी, सुभान अल्लाह। जब मॉर्निंग टाइम सूरज निकल रहा होता है तो उस वक्त जो है विटामिन डी के खजाने आपको अल्लाह ताला दे रहे हैं। ले भाई, अब मेरे बंदे जो बाहर के आए हैं, आपने रोजा रखा है, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। सनशाइन, सूरज की रोशनी जो है, सुभान अल्लाह। तो जब सूरज की रोशनी जो है हमें मिलती है, और ये भी सब कुछ जो है फ्री है। सूरज की रोशनी के अगर पैसे लग जाए तो कोई बंदा अदा नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। देखे जो लोग छत के ऊपर वो रखते हैं, अपना ट्रे रखते हैं, तो वहां से जो है ये बिजली पैदा कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जनाब। इसको हम जो है उसका शुक्र अदा नहीं कर, किसी अल्लाह की किसी भी नेमत का हम कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसमें बेसिकली तौर पर जो है वो माल्टोनिल एक जो है हार्मोन खारिज होता है, जिसकी वजह से जो है ये वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, जिसकी वजह से नेचुरली तौर पर जो है विटामिन डी की वजह से, यानी कि जो सूरज निकलते हुए और सूरज गुरूब होते हुए सनशाइन के अंदर जो है ये विटामिन डी के खजाने, विटामिन डी के खजाने हमें मिलते हैं। तो सुभान अल्लाह। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है बेसिकली तौर पर। इसमें बकायदा तौर पर ये कुव्वत पाई जाती है कि वो जो है हमारे बकायदा कुव्वत मुदाफत के निज़ाम को बेहतर करता है, और जो है जितना भी जो है अग्रेसिव, यानी कि बहुत तेजी से जो ऑटोइम्यून सिस्टम जो है जब खराब हो रहा हो, तो इसमें जो है नेचुरली तौर पर विटामिन डी जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करके जो है हमारे सबसे इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, और बेहतरीन किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफत को, यानी कि ऑटोइम्यून सिस्टम को बेहतरीन किस्म का जो है वो तगैयर तबदल पैदा करके जो है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है ताकत और तवानाई आती है। मैं ये नहीं कहता भी आप सारा दिन धूप में जो है अपने आप को बर्न करते रहे, यानी कि इतनी ज्यादा गर्मियों में, खासतौर पे जून जुलाई के महीने में, तो यहाँ पे अखीर जो है वो गर्मी होती है। ये अभी अगले महीने में मई में जो है गंदम पक जाएगी। तो ये जो है ये मैं तो सिर्फ जो है मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, जब सुबह सनशाइन निकल रहा हो सूरज, उस वक्त जो है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में यही फरमाते हैं कि सूरज को गुरूब होते हुए और सूरज को निकलते हुए मैंने जो खजाने आपको दिए, इनसे लुत्फानंदोज हो, उनसे जो है वो फायदा उठाएं। तो ये बर्न जो है ये नहीं मैंने कहा, तो जिस्म का बर्न होना जो है नुकसानदेह होता है। तो ये सिर्फ जो है मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम जाइए, अल्लाह के खजानों को लूटें, और मुफ्त की जो है ये उनकी गर्मी और सूरज की रोशनी और सूरज की हरारत से जो है वो अपने जिस्म को फायदा उठाएं। मेरे भाइयों, ये तो आपको मुफ्त मिल रही है। मैं श्रीलंका में गया तो अंग्रेज जो है रशिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग वहां पे जो है कोलंबो में आते हैं, और बीच के ऊपर जो है अपने जिस्म को नंगा करके जो है वो सूरज की रोशनी लेते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है आप लोगों के लिए। हम इसकी कदर नहीं करते। उन लोगों से पूछे वहां पे जाओ, सारा साल सूरज नहीं निकलता। जब सूरज निकलता है उस दिन उनकी छुट्टी होती है, और वो ऐसे जो है एंजॉय करते हैं। मैंने 17 मुल्कों की जो अपनी लाइफ में सैर की है, तो वहां पे मैंने जो हालात देखे वो मैंने आपको उनके जब हम वहां थे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में था मैं, या मतलब जो है ये इंग्लैंड में था, उस वक्त जो है ये जिस्म जो है ऐसे बुरबुरा सा और अजीब किस्म की बू और अजीब किस्म का उन इलाकों में जो है हमारा जिस्म हो गया था। तो जब हम मतलब पाकिस्तान में वापस आए तो अल्लाह का शुक्र है, दोबारा जो है ये हमारा गंदगी रंग अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये आपको मैं जो है ये कैसे आपको बयान करूं कि फबैया ला रब्बिकुम तुकज़िबान। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं जी। तो ये जो है सनशाइन के अंदर जो है ये फ्री तौर पे हमें जो है, खसूसी तौर पे हमें जो है ये जितनी भी हमें ग़िज़ा जो मिलती है, उसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जो है शफा होती है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सी जो है हम बीमारियों को खुद पैदा करते हैं।
बीमारियां हम जो है खुद क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें जो है बहुत ज्यादा गज़ा का पता नहीं है, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते, और सुन्नत के मुताबिक हम अपनी खुराक को जो है वो चॉइस नहीं करते। जब हम जो है वो नेचर के हट जाते हैं तो हमें सजा के तौर पे क्या होता है जी, नेचर से हट के हमें सजा के तौर पर जो है ये बीमारियां जितनी भी जो है हमें जो है ये खास तौर पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है, जो इसकी हम कल भी बात कर रहे थे, ये हमारे अंदर जो है वो पैदा हो जाती है। हम क्या करते हैं जी, आलू खा रहे हैं जी तो आलू ही खाते जा रहे हैं, उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार इंतहाई ज्यादा हम खा रहे हैं। दूसरे नंबर पर चपाती खा रहे हैं, रोटी गंदम की खा रहे हैं, तो वो खाते जा रहे हैं जी, खाते जा रहे हैं जी, और 10-10 रोटियां हम खा रहे हैं जी एक वक्त में। तो मेरे दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे, आपके मरीज ऐसा करेंगे, गंदम की रोटी खाएंगे, तो सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन और फैट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब ये चीजें नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार जो है वो आपके अंदर कितनी ज्यादा मकदार चली जाएगी, तो साफ जरा उसने शुगर ही पैदा करनी है आपके जिसमें, और बेचारी क्या करेगी। तो हमें जो है इतदाल को तो अपनाना चाहिए, और जब भी कोई इस किस्म का पेशेंट आए तो उसको ये कहें कि भैया अल्लाह ताला ने और भी आटे पैदा किए हैं, सिर्फ गंदम का आटा जो है वो नहीं, बल्कि चने का आटा भी आपके लिए मुफीद है, ज्वार या जिसको मकई का आटा कहते हैं वो भी मुफीद है। जो लोग इस तरह के मतलब कि जो शुगर के मरीज आते हैं, तो उनको जो है अगर आप 1 किलो जो है चने का आटा, 1 किलो गंदम का आटा, 1 किलो ज्वार यानी कि मकई का आटा, इस तरीके से हम अगर उनको जो है वो इस्तेमाल करवा दें, तो हाइड्रोजनेटेड फैट जो है इनके अंदर जो है ये नेचुरली तौर पर पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो शुगर का मसला जो है उनके अंदर जो है ये हल होना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, जब भी रोजा खोलते हैं डड़न डड़न अंदर जो है वो हर चीज को लेके जाते हैं, और सुबह उठते हैं सैरी करने के लिए, तो हम जो है क्या करते हैं जी, वो कहे जी सारा दिन गुजारना है जी, 5-7 रोटियां रेडी रखे थे जाओ, तो नहीं है। और फिर क्या होता है जी, इधर से हमने इधर 5-7 रोटियां खाई, और उसके बाद जो है हमने क्या किया जी, नमाज पढ़ी या नया पढ़ी फजर की, और वैसे सो गए। शैतान उस वक्त जो है हमें कहता है वो सो बड़ा मजा आता है, वाकई जो है फजर की नमाज से पहले जो है नमाज ना पढ़ी जाए तो नींद इतनी प्यारी शैतान लाता है कि अखीर जो है वो होती है। तो जिसकी वजह से जो है जब इतनी ज्यादा नींद हमें आ जाती है तो खाना हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमारे जिस्म के अंदर कम तो हो सकती है, लेकिन इसकी खराबियां जो है ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं कि हमारे खुराक के अंदर जितने भी जो है वो केमिकल होते हैं वो हमें जो है वो जाते हैं। हम अगर ऑर्गेनिक फूड से अगर हम रोजा खोलते हैं या कि सारी और अफ्तारी करते हैं, उसमें तो चलो इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन हमारे हम खुराक को देखते हैं, थोड़ा सा हम अपनी खुराक की तरफ गौर करते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है हमारे सबको होता है। ये सारे केमिकल जितने भी जो है वो बात करें कौन से केमिकल होते हैं, तो ये जितने भी जो हमारे फैक्ट्रियां लगी होती है उनका रंग जो है वो सारे का सारा जो है नहरों के जरिए से, नालों के जरिए हमारे फसलों को जो है ये वेजिटेबल को भी उनका पानी दिया जाता है और फसलों को भी उनका पानी दिया जाता है। उसके बाद आगे क्या करते हैं हम जी, खाद जो है वो चंगी अच्छी मकदार में जो है वो अपनी फसलों को लगाते हैं, और उसके बाद ऊपर से जो है पेस्टिसाइड को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और जब स्प्रे करने के बाद जो है ये हम क्या करते हैं, जिसके बाद जो है ये हम और भी बहुत से ऐसे केमिकल जो है इस्तेमाल कर देते हैं, जिसको जो लगाने के बाद जो है ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त जो है ये इथीन जो है CH3 उस वक्त वो बनता था एक आकर में, तो उसमें जो है वो गैस सी होती थी जिसकी वजह से हम फ्रूट को पकाने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से जो है और बहुत सी गैसें जो है ये हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं फ्रूट को पकाने के लिए। और इसी तरीके से जो है हम आगे चलते हैं कि ये जो है बहुत से जो है वो हाइड्रोजन के 100 ऑफ द पेस्टिसाइड रेक्टिसाइड्स ऑर्गेनिक फूड जो है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि इनकी जगह क्या होता है जी, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक फूड की जगह केमिकल फूड जो है हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, जिसमें ये चीजें शामिल होती हैं कि यानी कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं।
एक तो होती है जी ये फास्ट फूड जितना भी हम खाते हैं वो आपको पता ही है, पिज्जा खाते हैं जी हमारे बच्चे तो आजकल जो है, शवारमा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। और जो है ये इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर जो जितने भी फास्ट फूड है इनके अंदर जो है ये कलर ऐसे ऐसे जो है डाले जाते हैं, और अजीब किस्म का ये सारा जो है इनके अंदर जो है वो ग्लूटन सेंसिटिव जो है ये चीजें जो है वो डाली जाती है, जिसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियां जो है खास तौर पर जो है जो गंदम से सेंसिटिव लोग होते हैं, सीलिक डिजीज उनके अंदर जब पैदा होती है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, अल्लाह ने जो है वो बड़े अरसे से जो है अल्लाह उनको शफा देता है जिनको ग्लूटेन एलर्जी और जो सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों का अल्लाह का शुक्र इलाज किया जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें जो है अल्लाह ताला उनको शफाए कामला और आजला अता फरमाते हैं। इसी तरीके से जो है वो बहुत से जो है चीजें जो है उनके अंदर हम फंगस लगी हुई चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, और जिसको जो है वो माइकोटॉक्सिन इनके अंदर जो है मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से जो ओमेगा 6 वाली चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। हम चले ये कह लेते हैं कि उसके बाद हम तो चलो ये फूड ना इस्तेमाल करें फर्ज किया, ओमेगा 3 वाला हम फूड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम जो जानवर जो हमारी चीजें ये खाते हैं, सारी जितनी भी फसलें जो है उनकी खुराक भी तो यही है ना भाई। जो हमारे जो हम खाते हैं वही खुराक पत्ते वगैरह जो है वो घास और दीगर चीजें हमारे जानवर भी खाते हैं। हम क्या करते हैं कि उनका दूध भी पीते हैं, जानवरों का, भैंसों का और गाय का दूध भी पीते हैं, और साथ साथ जो है हम क्या करते हैं उनका गोश्त भी खाते हैं। दालें भी इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर राज्य के जो है ज्यादा से ज्यादा मकदार में जो है वो खादें डालनी होती है। तो जब ये दालें और गंदगी वाली जो है वो पानी, गंदा पानी और दीगर चीजें हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गेनिक नहीं है वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है, तो हमारे ग्रोथ हार्मोन को, जिसमें जो है वुमेन ग्रोथ हार्मोन जो है उसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जो है इजाफा हो जाता है, जिसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो ये बहुत ज्यादा तब्दीली आती है। और ख़ास तौर पे जो है हमारे जितने भी हार्मोन लेवल है और उसमें जो है वो अजीब किस्म का जो है वो तगय्युर तबद्दल आ जाता है, यानी कि उसमें बहुत सी तब्दीली हो जाती हैं। ये सारे केमिकल जो है हमारे जिस्म के अंदर जाकर जो है वो ग्लूटन ट्रांसलेट और इस तरह से जो है वो माइक्रो ग्लूटन और दीगर चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा करते हैं। और जब ये चीज़ों में इजाफा करते हैं तो क्या होता है जी, शुगर की मकदार जो है वो कई गुना जो है बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है क्या होता है जी, शुगर बेसिकली तौर पर गन्ना से पैदा होती है। बहुत से लोग जो है शुगर केन को जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो नहीं जानते। एक दफा मैं एक ट्रिप ले गया अपने स्कूल का लाहौर, तो वापसी पे जो है शुगर मेले में जो है मैंने जब बच्चों में टॉफियां तकसीम की, तो मैंने कहा कि जो बच्चा बताएगा उसको ज्यादा बड़ी टॉफी दूंगा कि चीनी किस दरख्त पे लगती है। तो किसी बच्चे को भी अभी तक जो है ये पता नहीं था कि चीनी किस दरख्त पे लगती है। उन्होंने सफेद चीनी तो देखी थी लेकिन गुड़ वगैरह और शक्कर वगैरह जो है नहीं देखी थी। तो जब हम जो है इसमें जो नेचर प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने इसका जहर और त्रियाग पैदा किया है, जब उसको हम खत्म कर देते हैं तो ये सफेद शुगर हमारे लिए इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे थे जो फ्रैक्टोज और माल्टोज और इस तरह पॉलीसेक्राइड जितने भी होते हैं, और इसमें डेक्सट्रोज है, ये हमारे लिए जो है इंतहाई नुकसानदेह और इसके अंदर इंतहाई ज्यादा टॉक्सिक सिटी होती है, जिसकी वजह से क्या है जी हमारे अंदर की जिस्म के अंदर जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और इन्फ्लेमेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है परवान करती है। इसी तरह से हम आलू की बात लेते हैं, आलू टमाटर हम बहुत ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं। और शुगर की हम बात करें तो कैसे कैसे हम शुगर इस्तेमाल, शरबत, इधर से शरबत पिया, उधर से बोतल पी, कोका कोला, पेप्सी कोला और जितने भी कोला शोला है, और ये पीने के बाद हमने क्या किया है, उसके बाद जाएंगे मीठी लस्सी और मीठा दही और समोसे पकौड़े, और उसके बाद जाइए जितनी भी चाहे वो मिठाइयाँ वगैरह को हमने जो है वो और इसी तरीके से केक, पेस्ट्रियाँ और दीगर जितनी भी बेकरी के आइटम है हमने उनको जो है खाना शुरू कर दिया। बर्गर शर्गर और इस तरीका से जो है ये खा खा के हम जो है वो अपने जिस्म को खुद ही तबाह कर रहे हैं और इल्जाम दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, राम नहीं आंदा सानू जी, ਤੁਹਾਡੇ को दवाई लै लै के थक है। होता असल में क्या है जी,
ہوتا یہی ہے کہ یہ مطلب جو ہے عارضی طور پہ جتنے بھی ہم ہمارے بھائی جو ہے بزنس بنایا ان لوگوں نے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ عارضی طور پہ آپ کو جتنے بھی جو ہے یہ دیتے ہیں دوائی، تو کہ وہ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے، یہاں پہ معدہ خراب ہو جاتا ہے ڈائٹ سے، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ فوڈ چین کے اندر سے جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بڑھ گئی، شوگر ہو گئی، کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ کیا ہوا جو پروٹین کی مقدار بڑھ گئی، عجیب قسم کا جسم بدا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فیٹس کی ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائے گی، پیٹ بڑھ گیا۔ ہم کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، اور جو ہے یہ کیا کرتے ہیں جی ہم جو ہے ابھی تکا کھانا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا، تو اور اس کے تل کے کھانا، اور اس کے بعد بھون کے کھانا، اور جو ہے گوشت کو اتنی مقدار میں کھا جانا، خاص طور پہ جتنے بھی جانور ان کے گوشت کو کھانا، اور جو ہے اس کا وقفہ نہ کرنا، یعنی کہ فاسٹنگ بھی جو ہے وہ نہیں کرنی، اور جو ہے فخر کے ساتھ جو ہے یہ سگریٹ پینا اور نشہ کرنا اور دیگر چیزوں کا استعمال، جتنے بھی کیمیکل ہے خاص طور پہ شراب کا استعمال کرنا چاہیے، ہمارے معاشرہ کے اندر جو ہے فخر کی علامت جو سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے جو بندہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے اس طریقہ سے بغیر کسی بھی سوچے سمجھے جو ہے یہ اپنے جسم کو خود ہی تباہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر اس کے جسم کے اندر جو ہے بہت سی جو ہے وہ کوانٹیٹیز اور کوالٹیٹیو اور چینیز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو بھی تبدیلی آتی ہیں وہ بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے وہ بیماری کا جو ہے منبع بنتی ہے، یعنی کہ بیماری کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی کرونک اور دیگر بیماریاں جو اس کو گھیر لیتی ہیں، جوڑوں کا درد، معدے کی خرابی، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ دیگر امراض جو ہے خاص طور پہ جو ہے انفلیمیشن جو ہے کرونک اور ایکیوٹ انفلیمیشن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا گھر کر لیتی ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے کیسے اس کو جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے، تو ڈائجسٹو سسٹم کو ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ گلوٹن کا اور جتنے بھی جو پروٹین ہے اور اسی طریقہ سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بڑی خاص مقدار میں ڈاکٹر کے مشورے سے، جیسے کہ ہمارے آج کل نیوٹریشنسٹ بھائی ہیں، ہم جب اس وقت پڑھتے تھے میڈم نگا سے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیشن، ہم نے اس وقت کورس کیا تھا، اس میں جو ہے غذا اور دالیں ہم نے جتنی بھی جو ہے یہ پڑھی تھی، اور اسی طرح غذا اور غذائیت اور صحت اور غذائیت، اور اس طرح کے جتنے بھی جو ہے میرے پاس 384 385 اور 484 485 486 یہ سبجیکٹ اوپن یونیورسٹی کے ہیں، تو ان کی جو بکس پڑھنے سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم خود ہی جو ہے اپنے گٹ کو جو ہے وہ کیسے مصروف کر رہے ہیں، اور کتنا زیادہ جو ہے یہ ہمارے اوپر برڈن ہم اپنے آپ پہ ڈال کے جو ہے ہم جو ہے وہ اس کو اپنے جسم کا خود ہی بیڑا گرک کر کے جو ہے بہت سے امراض کو ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک نیچر سے پیدا کیا ہے، تو قدرت کی نیچر جو ہے وہ انسان شروع سے بیمار نہیں ہوتا، تو اس کا ماحول، اس کی خوراک، اس کے عادات، اس کا لائف سٹائل اور اس طریقے سے دیگر چیزیں اس کو بیمار کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں جو اپنے مریض کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ تو ہم جو ہے یہ کل ایڈیشن ڈیزیز کی بات کر رہے تھے، آج تھوڑی سی جو ہے یہ ہم جو ہے کرشنگ ڈیزیز کی بات کر کے اس کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں جی۔ تو کرشنگ ڈیزیز بھی جو ہے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بیماری ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر گدا نخائیہ سب لوگ جانتے ہیں، پیٹوٹری گلینڈ، تو پیٹوٹری گلینڈ سے جتنی بھی رطوبات خارج ہوتی ہے، اگر اس کے اندر ٹیومر ہو جائے، پیٹوٹری گلینڈ کے اندر ٹیومر ہو جائے، یعنی کہ ٹیومر مین صلاح مین بنائل ہو جائے، یا کہ گدا نخائیہ کے اندر جو ہے سب لوگ جانتے ہیں، تو ٹیومر ہو جائے تو اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ، تو اس کا کام کیا ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرنا، خاص طور پہ جو ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ کو کنٹرول کرنا، لپٹیٹنگ ہارمون کو کنٹرول کرنا، ٹیسٹوسٹرون کو، پروجسٹرون کو، جتنے بھی ہارمون جسم کے اندر ہے اس کا جو ہے وہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک جو ہے وہ خود بادشاہ بیمار ہو گیا تو ملک جو ہے وہ کیا ہوگا جی،
हर बंदा जो है क्या करेगा अपनी मर्जी से। उधर से क्या हो गया, सिपा सलार ने अपना क्या कर लिया जी, बगावत कर दी, वजीर खारजा ने बगावत कर दी, वजीर आला ने बगावत कर दी, वजीर आजम ने बगावत कर दी, बादशाह तो बाहर बैठा है बेचारा प्रेसिडेंट जो है। यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है उसके अंदर जो है ट्यूमर आ गया, वो दब गया, उसने अपना काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाकी जिस्म का निजाम जो है वो खराब हो गया। अब कुछ लोग जो है ये कि जो भी जो है बगावत कर रहे हैं, वो जितने हार्मोन है, बाकी अडर्नल ग्लैंड है, कल हमने उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। तो ACTH जो है ये ज्यादा से ज्यादा मकदार में अब खारिज होना शुरू हो गया जिसम के अंदर। हर जो है हार्मोन ने अपनी मर्जी से जो है उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया। कंट्रोल कौन कर रहा था? अब इसी तरह से ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या है? बेसिकली तौर पर ये वो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होकर हमें जो है वो दूध मुहैया करता है। यानी कि बैल्सो को यही ऑक्सीटोसिन का टीका जो है वो लगाते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नेचुरली तौर पर ये हार्मोन जो है मौजूद होता है। तो अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ने तो अपना कंट्रोल ही खत्म कर दिया है। यानी कि उसके अंदर ट्यूमर आ गया, तो ये ट्यूमर की वजह से जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाकी तमाम हार्मोन जो है वो अपनी मर्जी से खारिज हो रहे हैं और अपनी मर्जी से कम हो रहे हैं, अपनी मर्जी से ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म के अंदर जो है ये अजीब सी खलबली मच गई। जब क्या है मतलब पुलिस वाले या फौज वाले जो है क्या है जी, उनका हुक्मरान ही, उनका कमांडर जो है वो अपना जो है वो काम छोड़ गए हैं। तो अब किसी की मर्जी जो है, जिसको मर्जी कत्ल करे, जिसको मर्जी रखे, जिसको मर्जी छोड़ दे। तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरे जिस्म के अंदर जो है क्रशिंग डिजीज के अंदर जाइए खरबली सी बच जाती है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म के अंदर जाइए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हार्मोन की खास तौर पे जाइए कहीं जो है वो बहुत ज्यादा जो एफिशिएंसी जो ज्यादा हो जाती है, और कहीं कहीं डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। कोई भी हार्मोन अपनी मर्जी से जो है वो खारिज होना शुरू हो जाता है, और कोई भी हार्मोन जो है वो इंतहाई ज्यादा दब जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन रुक गया तो ग्रोथ रुक गई। इसी तरीका से लिक्टोटेडिक हार्मोन रुक गया तो आपकी लैक्टेशन रुक गई। इसी तरीका से जो है आगे पैराथायराइड का अमल भी इसी से है। और डर्नल हार्मोन रुक गया तो आपका जो है ये जितना भी डर्नल सिस्टम है वो खत्म हो गया, स्टीराइड सिस्टम खत्म हो गया, कार्टिकोस्टीराइड सिस्टम खत्म हो गया, हाइड्रोकार्टिसोल का जो है अमल खत्म हो गया। उसमें जो है अगर किसी जगह में बाल का स्टूल अचानक जो है खाने आने शुरू हो गए और जिसम काला होना शुरू हो गया, तो जो भी जो है जिसम का कंट्रोल जब जो है बादशाह सलामत जो है वो बीमार हो गए, उनके अंदर जो है ट्यूमर आ गया, उनके अंदर सौली आ गई, वो दब गए, उन्होंने अपनी रतूबात खारिज करनी शुरू कर दी, जो है वो कंट्रोल उनका खत्म हो गया, उनकी रतूबात ही जो है वो निकलनी बंद हो गई, ऑक्सीटोसिन और उसके बाद जो है ये दिग्गर हार्मोन जितने भी वहां से जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग THS जो है वो, और इसमें जो है दो लोब हमने जो पढ़ाई के जमाने में पढ़े थे, दोनों लोब जो है वो अपना काम करना जो है छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है कंट्रोलिंग सिस्टम जो है खत्म हो जाता है और हर जिस्म का पूरा निजाम जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे जो है इसको बेहतर कर सकते हैं, और जो है जिस्म को वापस जो है वो अपनी जगह पे कैसे ला सकते हैं, क्या सलाह, यानी कि ट्यूमर या बनाइन ट्यूमर या मुगलेट ट्यूमर का हमारे पास इलाज मौजूद है, क्या हम उसको सर्जरी के बगैर जो अलग कर सकते हैं? तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको जो है वो जाने और पढ़े, और कल इंशाल्लाह जो है वो इसके बारे में हम क्रशिंग डिजीज को जो है वो मजीद जो है ये डालेंगे। तो इसके बाद जो है ये हम आगे जो है इसको बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है नेचर ने इसमें जो है बेहतरीन इलाज जो है वो पैदा किया हुआ है। तो हम उसके मतलब ये असल में क्या क्यों होता है ट्यूमर जो है, ये बाजू का रेडियाई लहरें, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारा जो है ये, और बहुत सी खराबियां जो है ये हमारी कीमोथेरापी और इंटरफेरोन जो इंजेक्शन, और हमारा जो है ये ऑक्सीटोसिन का ज्यादा इस्तेमाल, कार्टिकोस्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल, और इसी तरीके से बगैर जो है वो डॉक्टर के मशवरे के खुद ही जो है डेल्टा कार्टर जो है वो हजारों की तादाद में जो लोग खा रहे हैं। वो कहते हैं मतलब अब एक बंदे को जो हमारे असल में मुल्क में पता होता क्या है कि मुझे जो है इस दवाई से आराम है, डेल्टा कार्टर पकड़ी हुई है हाथ में, वो जीप वाली गोली, लंबी गोली जो है जिसको जो है मुझे इससे जी आराम आ गया जी। अब उसने जो है 4 बंदों को और बताया, 5 बंदों को और बताया। अब वो डॉक्टर जो है बड़ा कामयाब हो गया, जो हमारे जो है क्वैक बेसिकली तो
जो हमारे मेडिकल स्टोर से 10 गोलियां लेके 50 गोलियां लेके जेब में डाली हुई रखी हुई है, तो मुझे जी इससे दर्दों का बड़ा फायदा है जी, बड़ा फायदा है जी, बड़ा फायदा है जी। तो हर बंदा जो स्टीराइड को जो है वो बिला तकल्लफ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और जो है उसको जो है जेब में डाल के रखी हुई है उसने जो है, तो ये उसने जो है दूसरे को बताना है, तीसरे को जी यार छोड़े डॉक्टर को जी, ये देखे जी ये मैंने मेडिकल स्टोर से ली थी 10 रुपए की जो 50 गोली आई थी, ये आप लेके खा ले तो आपको तो अभी फायदा हो जाएगा। और वाकई जो स्टीराइड वक्ती तौर पे काम करता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म को जो है वक्ती तौर पे सांस वाली नौली को जो है वो डायलेशन कर देता है, जितने भी जो है वो जिस्म की नालियों को खोल देता है, वक्ती तौर पे दर्दों को भी शफा हो जाती है, और इस तरीके से वक्ती तौर पे तमाम जितने भी जो है ये जिस्म के जितने भी अज़ा वो खुल जाते हैं। और जो है ये इस तरह से बेतुका जो है हर बंदा जो डॉक्टर जो है हमारे आप किसी से मशवरा करेंगे तो 50 आपको नुस्खे जो है वो स्टीराइड के बता देगा कि ये जो प्रेडनिसोलोन इस्तेमाल कर लो यार, ये तुम, और तीन तीन चार चार जो है वो हाइड्रोकार्टिसोन के इंजेक्शन जो है वो, और ये घर में बैठ के जो है वो कहते हैं यार छोड़ो डॉक्टर के पास क्या जा रहा है, ये देखो वो अब जो है वो बाज औकात मेरे ऐसे मेरे पेशेंट देखे हैं कि जो जोड़ों के अंदर जो है स्टीराइड लगा के, और वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हो गए डॉक्टर साहब, आपसे 2 बार दवाई खाई, तो एक जरा जो है वो फर्क तो पड़ता है, जब भी जो है वो आराम नहीं आता तो दवाई तो हम खाते हैं। तो इस तरीका से जो है हमारे बहुत से भाई जो है वो खुद अपना इलाज जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए उनको जो है ये हमें मैं तो हमेशा अपने ऐसे मरीज जो मेरे पास आते हैं जो स्टीराइड का जो बितु का इस्तेमाल करके जो आते हैं, तो मैं तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ भैया आप तो किसी और के पास ही चले जाए, लेकिन हमारे पास इसका इलाज तो मौजूद है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन जो है उससे मुकम्मल तौर पर परहेज किया जाए, खास तौर पर जो है स्टीराइड की सेल्फ मेडिकेशन जो है ये इंतहाई खतरनाक है, वो आपके जिस्म को जो है पूरे जिस्म को तबाह कर देती है। तो बाज़ औक़ात इससे जो है फायदा तो होता है, मैंने देखा है कि ये जो है मतलब एक बिल्कुल गंजा बंदा था तो उसको जो है वो फायदा हुआ, उसके सर के ऊपर बाल आ गए, तो इसी तरीका से जो है वो बहुत सी औरतें उनको दाढ़ी और मूछें आ गई। तो ये स्टीराइड के कुछ जो है वो हम फायदे कह सकते हैं या नुकसानात कह सकते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं मेरे सब दोस्त। तो हम जो है इसको मजीद जो है इसको जारी रखेंगे। मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे जो है प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत मेहरबानी।